we have started our new unit, vector integral calculus. Okay, so in that we already discussed about the work done and how to find the work done. There is a formula for the work done. It is nothing but W is equal to क्या था formula? Anybody? FDH. Yes, W is equal to integration F bar into dr bar. Okay, and integration is under the curve C. है ना? ये किया था ना हमने. Okay, so here you have the F bar and dr bar. Okay, so find out the line integral. This is nothing but the line integral. Work done means line integral. So first example for today is evaluate integration over C F bar into dr bar, where F bar is equal to x square plus y square into I cap minus 2xyj, and C is a rectangle in the xy plane bounded by this one. So you can see here you have the F bar. So here write down here F bar is equal to x square plus y square into I cap minus 2xy into j cap. Okay, so यहाँ पे जो दिया है वही हमने लिख दिया. Now if you find F bar into dr bar, F bar into dr bar means you have the your F bar x square plus y square into I minus 2xyj into dr bar. Dr bar means dx I cap plus dy j cap. Now do the dot product of these two vectors. So what we get here? X square plus y square into dx minus 2xy into dy. Yes or no? Everybody got it? Okay. Online में पता चला कि नहीं सबको? Yes, sir. Okay. Now next. So here integration over C F bar into dr bar is equal to integration over C x square plus y square into dx minus 2xy into dy. Okay, and say this is your equation start या फिर 1 जो भी आपको बोलना है. Okay, यहाँ तक किसी को डाउट? Okay. Now they given that you have the curve C in the rectangle form. So again we draw one rectangle, so you can see on your screen. For example, this is your x-axis and this is your y-axis. Okay, so x-y axis is that. Now let me tell what is your first curve. X is equal to 0 क्या होगा? X is equal to 0 means y-axis. Okay, so x is equal to 0. So this is my x is equal to 0 axis. So ये हो जाएगा मेरा x is equal to 0. Now second given curve is x is equal to a. X is equal to a means a में से पास होता हुआ एक लाइन. Yes or no? है ना? So this is your x is equal to a. Then third one is y is equal to 0. Y is equal to 0 means x axis. So this is, yes, this is your y is equal to 0. And last is your y is equal to b. So y is equal to b. So y is equal to b is nothing but our line passing from y is equal to b. तो यहाँ पे b point है, यहाँ पे a point है, तो यहाँ पे y is equal to b. So this is your given region C. C आपको ये दिया है. Okay. अब इसके अंदर आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है. तो यहाँ से सबसे पहले डिसाइड योर डायरेक्शन. मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए. सो इफ आई गो टू दिस वे, दैट मीन्स O to P, P to Q, and then Q to R and R to O. So our given rectangle is OPQR. Is it clear everybody? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे देखो, अब स्टार में आपको कोई एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना है, बस नथिंग एल्स. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एवरीबॉडी लुक एट हियर, नहीं तो नहीं पता चलेगा. सो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार इनटू dr बार इज नथिंग बट, यहाँ पे देखना, इंटीग्रेशन ओवर ओपी एफ बार इनटू dr बार प्लस इंटीग्रेशन ओवर pq एफ बार इनटू dr बार प्लस इंटीग्रेशन ओवर QR F bar into dr bar plus integration over RO
एफ बार इंटू डी आर बार। यस और नो? मीन्स 4 लाइन के ऊपर मेरा वर्क डन मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है। इज इट ओके? ऑनलाइन में पता चला कि नहीं? सर ओके, तो यहाँ पे मैं मुझे पहले लिखना पड़ेगा। हाँ यस बोलो। Yes, any confusion then please let me inform. No, sir. Okay, given rectangle is OPQR, तब जाके हम ये लिख सकते हैं। Now think about OP. Okay, तो यहाँ पे देखो for OP everybody. अब for OP मुझे बताओ कि what is the equation of the line for that? 0 to A. No, that is not equation of line. ये तो point हुआ 0 0 to A0, that is the point. But what is the equation of the straight line? Y is equal to 0, वो दिया ही है आपको, है ना? So y is equal to 0, yes or no? Everybody yes or no? Yes, sir. Okay, so dy is equal to 0 हो जाएगा. So substitute y is equal to 0 and dy is equal to 0 in equation 1 to get the integration over OP f bar into dr bar, है ना? यहाँ पे therefore integration over OP f bar into dr bar is equal to integration, limits बाद में देखते हैं, integration x square को तो कुछ नहीं करना है, वो as it is, मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ तो आपको दिखे, है ना? देखो यहाँ x स्क्वायर एज इट इज, अब प्लस 0 y स्क्वायर है ना, सो प्लस 0 है ना, तो वो 0 कर दिया मैंने, इनटू dx तो वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2xy तो उसमें तो 0 इंटू 0, dy भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव ओनली द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. यस और नो? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes. है ना? Yes, sir. अब मुझे x की लिमिट बताओ. चलो O to P जाना है तो व्हाट इज माय लिमिट फॉर x? 0 to A, Sir, sir. 0 to A, to A. so 0 to A मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now you can integrate this one. So x cube by 3 and our limit is 0 to A, so substitute A first. So a cube by 3 minus 0, so we have a cube by 3. So this is our first one, integration मिल गया. Similarly we can find for further 3, तो इसको मैं बोल देता हूँ 1. अब सेकंड के लिए फॉर PQ के लिए चलो बताओ मुझे, फॉर PQ क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x इज इक्वल टू Sir, ए, X है ना? x इज इक्वल टू ए होगा ना PQ के लिए. सो x इज इक्वल टू ए, देन dx इज इक्वल टू 0. तो अब ये दोनों ही दोनों वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? स्टार, है ना? तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर PQ f bar into dr bar is equal to इंटीग्रेशन, अब f bar into dr bar तो मेरे पास है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx, तो dx वाला पूरा 0 करना है, तो यही बचा सिर्फ 2xy इंटू dy. लेकिन उसमें भी मुझे यहाँ पे देखो क्या रखना था, तो माइनस 2 x की जगह पे a, y एज इट इज एंड dy. नाउ व्हाट इज द लिमिट फॉर PQ फॉर y की लिमिट क्या होगी? 0 to B. Yes or no, everybody? 0, Yes, sir. 0 to B. That means minus 2a is outside. Now integrate this. That means y square by 2. 0 to B. So we have minus 2 to cancel out. So only we have a into b square, है ना? माइनस ab स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं. सो दिस इज योर सेकंड इंटीग्रेशन, सेकंड वर्क डन फॉर PQ. नाउ फॉर QR, चलो फॉर QR देखते हैं. सो फॉर QR के लिए कौन सा इक्वेशन होगा? चलो बताओ QR के लिए. Sir, H equal to 0. x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा ना QR के लिए.
Sir, sorry, y is equal to 0. वेरी गुड, y इज इक्वल टू बी, बी है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू बी होता है ना वो लाइन. सो dy इज इक्वल टू 0. सो अगेन वी गो फॉर द qr, f bar into dr bar is equal to integration. Now let me tell what is the limit of, अब dx बचेगा ना, x की लिमिट क्या होगी q to r में, क्या होगी a to 0, यस है ना, क्योंकि ये a पॉइंट कौन सा है, ये ए बी है ना, एंड ये पॉइंट है 0b. तो अगर आप x की लिमिट देख रहे हो तो a to 0 होगा, अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a to 0, अब मेरे जो f बार इंटू डी आर बार है उसमें मुझे y इज इक्वल टू बी रिप्लेस करना है और dy इज इक्वल टू 0. तो ये तो पूरा 0 सेकंड, सिर्फ यहाँ पे y इज इक्वल टू बी हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x square plus b square into dx. Now integrate this, then you have x cube by 3 plus b square x a to, sorry क्या था ये, a to b था ना, a to 0 था, सॉरी a to 0 है ना, a to 0. सो फर्स्ट 0 for 0 एंड माइनस सेकंड a रिप्लेस करेंगे तो a cube by 3 एंड माइनस a b square. So is there any doubt, any question? Anybody? QR में कोई, निश्चल, Yes, sir. रमेश? No, sir. Okay. Then we go for next and last one is our RO है ना. So integration over RO. ओके पहले इन वाला सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा पैरामीटर 0 होगा. सो फॉर RO, चलो RO के लिए कौन सी स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 है ना. सो x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 implies dx is equal to 0 and dx is equal to 0, that means work done, that means यहाँ पे हो जाएगा f bar into dr bar is equal to इंटीग्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट तो 0 हो गया, अब सेकंड वाला बाकी बचेगा, तो सेकंड में भी वो 0 है ना, dx 0 है तो फर्स्ट 0 हो गया और x 0 इसलिए सेकंड 0, तो पूरा वर्क डन ही वहां पे 0 हो गया है ना. सो 0 इंटू dx प्लस 0 इंटू dy, तो ये तो टोटल हो गया 0. तो आरओ के लिए कोई वर्क डन नहीं है. ओके, अब टोटल हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो टोटल हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है ये वाला. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, सर पर इसकी लिमिट तो लिखनी ही पड़ेगी ना. हाँ लिमिट्स लिखेंगे तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट्स आप कोई भी ले लो. देखो यहाँ पे 0 0 टू, यहाँ पे 0 भी है, तो 0 0 तो नहीं ले सकते, दैट मीन 0 टू बी आएगा, नो सॉरी b टू 0, b टू 0, b टू 0, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं ना. इज इट ओके निश्चल? Yes, sir. Okay, so b to 0, therefore the required integration is integration over c f bar into dr bar is equal to, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया था कि चारों ही चारों है ना. तो फर्स्ट का आंसर कितना आया था, a cube by 3 है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा a cube by 3 प्लस सेकंड का आंसर क्या आया था, माइनस ए बी स्क्वायर. सो माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड के लिए माइनस ए बी स्क्वायर. थर्ड के लिए क्या आया है, इसको थर्ड बोल दें, माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर. सो माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 0, 4 1 इज 0, सो 0, एंड यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2
3 and 4. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास मिला a cube by 3 minus a cube by 3, दैट मीन्स 0. यहाँ पे माइनस ab स्क्वायर minus 2ab square, that is your required answer for the given data. Is it okay everybody? Any doubt, any confusion? यहाँ पे ऑफलाइन में कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन में एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर. 1 मिनट. यस, Sir, माइनस. यस यस, बोलो. नो सर, सही है. अब बोलो बोलो. सही बराबर ही है. सही है ना? ओके ओके. So this is your given example number 1. Now think about this one. Evaluate integration over C f bar into dr bar, where f bar is equal to this one and C is a straight line joining 2 points 0 0 0 and 1 1 1. Okay, इसके लिए आपको सोचना है. चलो कैसे करेंगे? अगेन वही का वही है, सिर्फ थोड़ा वेरिएशन दिया है. क्या वेरिएशन दिया है? 2 पॉइंट दे दिए आपको, है ना? तो 2 पॉइंट को पास होता हुआ आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, नथिंग एल्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अगेन कहां से स्टार्ट करेंगे? हियर f bar is equal to this one, that means 3x square plus 6y into I cap minus 14yz into j cap plus 20xz square k cap. Okay, so this one is the given f bar. Now find out f bar into dr bar. So f bar means मेरे पास है 3x square plus 6y into I cap minus 14yz j cap plus 20xz square k cap into dr bar. Dr bar, that means dxi plus dyj. Now multiply both the vectors. So we have 3x square plus 6y into dx. सॉरी, यहाँ पे r को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ना हमको z तक, दैट मीन्स dz k, है ना? तब जाके दोनों का प्रोडक्ट होगा dx माइनस 14yz dy प्लस 20xz स्क्वायर dz. ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड दिस स्टेप? ओके ओके. नाउ हियर जो दिया है वही लिखेंगे. हियर C is a straight line joining 2 points 0 0 0 and 1 1 1. ओके, अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या होगा? हमारे पास था ना वो फॉर्मूला, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1. यस और नो? ओके, अब इसमें हम x1 एंड x2, y1 y2, z1 z2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? चलो, so x minus 0 upon 1 minus 0, y minus 0 upon 1 minus 0, z minus 0 upon 1 minus 0. How we get this? This is your x1 y1 z1 and this is your x2 y2 z. Okay, वो मैंने रिप्लेस किया. So we have x is equal to y is equal to z. Yes or no? यस सर. Okay, now differentiate this. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पर भी dx is equal to dy is equal to dz. Okay, so we get this dx is equal to dy is equal to dz. Now substitute this data into equation star and convert f bar into dr bar into the single variable. We can do it, है ना? सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं ना. इसमें आपको x is equal to y is equal to z सब्स्टिट्यूट करना है. If you go with x, then convert it into the dx. If you go with y, then convert it into dy.
एंड इफ यू गो विद z देन कन्वर्ट इट इनटू dz. किसी एक में आपको ट्रांसफर करना है. इज इट ओके ऑनलाइन में? yes or no? Yes, sir. So from equation star f bar into dr bar is equal to, चलो देखते हैं क्या है हमारा f bar into dr bar. देखो यहाँ f bar into dr bar था 3x स्क्वायर, मैं x में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 इंटू एक्स हो जाएगा, dx मेरा एज इट इज हो जाएगा माइनस 14 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस 20 एक्स क्यूब, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, सो एक्स क्यूब हो जाएगा एंड यहाँ पे dx आएगा. सो यहाँ पे टोटल आपको कितना मिल रहा है देखो 3x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 6x माइनस 14x स्क्वायर प्लस 20x क्यूब इंटू dx हो जाएगा. इज इट ओके? अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. So you have 6x minus 11x square plus 20x cube into dx. Therefore, अब मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ओवर c f bar into dr bar is equal to इंटीग्रेशन ओवर c 6x minus 11x square plus 20x cube into dx. अब मेरा c के लिए x के लिए क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन की? 0 to 1. 0 to 1, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए 0 to 1 0 to 1 0 to 1 x कंपोनेंट देखेंगे तो 0 to 1 ही होगा. तो हियर यू हैव 0 to 1. नाउ इंटीग्रेट दिस. सो 6x square by 2 minus 11 into x cube by 3 plus 20 into x raised to 4 by 4 and 0 to 1. तो पहले आप 1 रिप्लेस करो. सो वी हैव 6 by 2 minus 11 by 3 plus 20 by 4 एंड 0 के लिए तो सभी 0 रहेंगे. ओके चलो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या है. एवरीबॉडी फाइंड आउट द फाइनल आंसर. जल्दी करना. हाँ 13/3. वेरी गुड. 13/3 ऑनलाइन वाले. इज इट ओके? 13/3 आ रहा है? Yes, sir. सभी को मिल रहा है? प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then yes sir. Okay. Then we go for the next. So next example के लिए चलते हैं. Yes, next example is depend on parametric equation. So first we discuss about the parametric equation. What you mean by parametric? So everybody look at here. हो गया ना complete? Done? Okay. पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है कि कोई भी कर्व को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी यूज करते हैं उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन. ओके मींस आप हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए वो कैसे थे? x y z में थे. नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द x इन टर्म्स ऑफ t, y in terms of t, z in terms of t. Then you have to go with the parametric equation. Okay, done? Understand? तब पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको निकालना है. तो देखो if the coordinates xy on the curve are represented as function of new variable t, that means x is equal to f of t, y is equal to g of t, then this t is called the parameter and the relation between x, y and t is called the parametric equation. For example, number 1, an equation of a straight line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by. तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमको पता है ना. अब उसको मुझे पैरामेट्रिक में ले जाना है तो क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ t यहाँ पे इक्वल टू लिखना है. अब t इक्वल टू लिखेंगे तो इसको ओपन करो तो क्या होगा देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू t लिख सकता हूँ कि नहीं. अब इसमें से x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा x इज इक्वल टू
t x2 माइनस x1 प्लस x1 हो जाएगा। यस और नो? ऑनलाइन में यस और नो? ये पता Yes, चला sir. है ना? ओके, अब यहां से देखो तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, t इंटू x2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t इंटू x2 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 माइनस t इंटू x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू मिला मुझे tx2 प्लस 1 माइनस tx1 एंड सिमिलरली आई कैन फाइंड y इज इक्वल टू ty2 प्लस 1 माइनस ty1। तो बोथ आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। ओके, सिर्फ यहाँ पे टी में ले जाना है, बस दूसरा कुछ नहीं। आपको टी में ले जाके जो भी आप डिस्कशन करो, इट इज कम्स अंडर द पैरामेट्रिक इक्वेशन। चलो सर्कल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन स्टडी करते हैं। तो सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन है, तो मेरा ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको मुझे टी में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? वी कैन कंसीडर x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। वहां पे हम थीटा लेते थे ना, तो यहाँ पे टी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो थीटा के टर्म्स में ही है, 0 लेस और इक्वल टू टी लेस और इक्वल टू 2 पाई। सो दीज आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द सर्कल। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन पैरामेट्रिक ऑनलाइन में? एनीबॉडी? No, sir. Okay, so first example for the parametric form. So evaluate integration over c f bar into dr bar, where f bar is equal to this one, and from the point 0 0 0 to 1 1 1 along the curves x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to tq. अब इसको मुझे फाइंड करना है, कैसे करेंगे कौन बताएगा? चलो कोई गैस वर्क तो लगाओ, बहुत सिंपल है। तो वो ही तो रहते f into dr बार। वेरी गुड, पहले तो f इंटू डी आर बार है ना, तो पहले मैं f इंटू डी आर बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हियर f बार इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6y i कैप माइनस 14yz j कैप प्लस 20xz स्क्वायर k कैप। ओके, देयरफॉर f बार इंटू डी आर बार इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एवरीबडी चलेगा ना? यस सर। 3x square plus 6y into dx minus 14yz into dy plus 20xz square into dz। देखो प्रीवियस एग्जांपल ही है, देखो यही था। आप एक बार देखो आगे एग्जांपल में वही दिया है ना, सिर्फ यहाँ पे x y z कोऑर्डिनेट्स में था। नाउ वी आर गोइंग विद द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ओके, x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to tq। तो चलो हमको f बार इंटू डी आर बार मिल गया, इसको बोल देते इक्वेशन स्टार। नाउ जो भी हमारे पास है उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे देखना, हियर x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to tq। तो एवरीबॉडी लुक एट हियर, dx मेरा क्या होगा? dt। dt। dy क्या होगा? सर इधर dy करने से अच्छा ये नहीं रहेगा कि y तो हम x के साथ कन्वर्ट कर दे तो? वो कर रहे वही प्रोसेस कर रहे हैं, डोंट वरी, वही प्रोसेस कर रहे हैं। देखो dy इज इक्वल टू 2t dt एंड dz इज इक्वल टू tq, दैट मींस 3t स्क्वायर dt आ जाएगा। यस और नो? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में पता चला यहाँ तक? यस सर। तो अब जो इक्वेशन स्टार है उसमें मेरे पास दो चीज आ गई कि एक्स वाई जेड की वैल्यू एंड डी एक्स डिवाइड डी जेड की वैल्यू। तो फुल इक्वेशन मेरा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? टी में हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? यहाँ तो यस है, ऑनलाइन में यस नहीं आ रहा है। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो एट 0 0 0 0 0 0 एक पॉइंट था ना हमारा 0 0 0। अब वहां पे हम t की वैल्यू फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0,
तो x0 से मुझे t क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सी 0। 0 अब y इज इक्वल टू 0 है तो ऑटोमेटिकली सेकंड इक्वेशन में भी t इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा ना, एंड z इज इक्वल टू 0 में अगेन t इज इक्वल टू 0। सो 0 0 0 दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल पॉइंट है ये, यस और नो, ऑनलाइन में Yes, sir. है ना। अब 1 1 1 पे चेक करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 तो मेरा t कितना हो गया, 1 हो गया। y इज इक्वल टू 1 तो t भी मेरा कितना हो जाएगा, अगेन 1। z इज इक्वल टू 1 तो अगेन t इज इक्वल टू 1। सो वी हैव t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1, यस और नो। सो अब जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें पूरा t में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम t इज की लिमिट जो है 0 to 1 अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ओके वही करना है। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एवरीबॉडी, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ये दोनों ही दोनों चीज हमको यूज करना है। तो एफ बार इंटू डी आर बार क्या होगा, देखो यहाँ 3x² दैट मीन्स 3t² प्लस 6t² इंटू dx की जगह पे dt माइनस 14y की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, t²। सो t² इंटू z मीन्स t³ इंटू dy मीन्स 2t dt एंड प्लस 20x मीन्स अगेन t, z है तो z मीन्स t³ है तो t⁻6 हो जाएगा ये, क्योंकि 3² है ना। तो 6 इंटू dz के लिए आपको लिखना है 3t² dt। नाउ मर्ज दिस, इसको मर्ज करते हैं, चलो तो मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। यहाँ पे 6 प्लस 3 9t² माइनस 14, यहाँ पे t² t³ t तो t⁻6 हो गया एंड 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। सो 28 t⁻6, यस 6t² आया ना, y की जगह पे t² रखना था ना इसलिए, ओके। तो यहाँ पे 28t² एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3 मोर दैट मीन्स 20 इंटू 3 दैट मीन्स 60 t⁻9 इंटू dt। इज इट ओके एवरीबॉडी, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कुछ तो लिखो, एक ही लिख रहा है, ओके डन। चलो तो एफ बार इंटू डी आर बार मिल गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C एफ बार इंटू डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि t की लिमिट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। सो 9t² माइनस 28 t⁻6 प्लस 60 t⁻9 इंटू dt। चलो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। हाँ इसको सॉल्व करके आंसर चाहिए। जीरो टू 1 है ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9/3, 2 यस कितना 2 2 नहीं आ रहा है, सॉरी 2 नहीं आ रहा है, 5 है ना, यस 5 सही आंसर है, क्योंकि 3 माइनस 4 प्लस 6, yes so 5, so our work done is 5. So is there any doubt, any question in this example, parametric form में किसी को? No, sir. Okay, offline में done। चलो तो फिर इसके लिए ट्राई करो, चलो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, चलो इसके लिए ट्राई करो। PQ I cap plus YJ plus ZK is a force field
फाइंड द वर्क डन। अब देखो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन नहीं दिया है, क्या लिख के दिया है, वर्क डन, बट वर्क डन मीन्स इंटीग्रेशन है ना, वही एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए वर्डिंग में लिख दिया है वर्क डन। ओके, तो अगेन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ बार इंटू डी आर बार। चलो करो, क्या होगा, एक्स क्यूब डी आर प्लस वाई, सॉरी डी एक्स नॉट डी आर, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये मिलेगा कि नहीं। ओ चलो जूम, एफ बार इंटू डी आर बार। अब क्या है हमारे पास, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे जाएंगे, चलो बताओ, करो करो चलो जल्दी करना, लेकिन we have only 4 to 5 minutes। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, here C is a line from 1 2 3 to 3 5 7। चलो निश्चल कैसे करेंगे, अब ये दोनों के बीच में पैरामेट्रिक कैसे लाएंगे, सर वो x माइनस x1। यस वेरी गुड, so x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1। so इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, is equal to t लेना है ना, so x माइनस क्या होगा 1 x माइनस डिवाइड बाय 3 माइनस 1, यहाँ पे y माइनस y1 मीन्स 2 डिवाइड बाय y2 मेरा 5 है, सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 मीन्स 3 है, डिवाइड बाय z2 7 है, सो 7 माइनस 3 इक्वल टू t। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 3 and z minus 3 divide by 4 equal to t। अब इसमें से x को सब्जेक्ट बना दो फर्स्ट में से, सो x is equal to फर्स्ट इक्वेशन आया आपका 2t plus 1, yes or no, यस सर। y आपको मिला 3t plus 2 and z आपको मिला 4t plus 3। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, सो dx is equal to 2 dt, dy is equal to 3 dt है ना, and dz is equal to 4 dt। okay, so we have the x y z and dx dy dz। now we can convert our f into dr bar into the t form, so from equation star f bar into dr bar is equal to क्या हो जाएगा, चलो बताओ, x क्यूब है ना पहले, यस x क्यूब, दैट मीन्स 2t plus 1 क्यूब इंटू 2 dt प्लस y सीधा है, सो 3t plus 2 इंटू dt dy दैट मीन्स 3 dt प्लस z means 4t plus 3 into dz means 4 dt। now any confusion up to here anybody, किसी को भी कंफ्यूजन है ऑनलाइन में, एनी कंफ्यूजन एनीबडी, नो सर। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, t की वैल्यू चाहिए ना इंटीग्रेशन के लिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है। सर क्वेश्चन लिखा हो ना।
yes, yes, question is this. हाँ, x is equal to 1, very good, y is equal to 2 and z is equal to 3, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था ऐसे, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, चलो ये जो है ना हाँ बोलो। h 1 2 3 तो Yes. उसको हम इसमें डालेंगे तो h is equal to 2t plus 1. Very good. So x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. तो x is equal to 1 में हमारे पास है 2t plus 1, x की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, is equal to 1. तो t क्या हो गया? 0, है ना? यहाँ पे y मेरे पास है 3t plus 2 is equal to 2. तो t is equal to 0 and z मेरे पास है 4t plus 3 is equal to 3. That gives me t is equal to 0. तो हमारी एक वैल्यू मिल गई t is equal to 0. And at दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3 5 7. At 3 5 7 अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे. x is equal to 3. That means 2t plus 1 is equal to 3. y is equal to 5. That gives 3t plus 2 is equal to 5. And z is equal to 3. It gives me 4t plus 3 equal to 3. है ना? 7 है, 7 है, सॉरी 7 है, सो 7 और यहाँ पर भी 7. अब इसको सॉल्व करेंगे तो t कितना मिला? 1. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1. तो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट भी मिल गई हमको 0 to 1. इज इट ओके? सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 की हेल्प ले रहा हूं तो क्या होगा देखते हैं. अभी इससे भी छोटा करना पड़ेगा. यस, सो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C f bar into dr bar is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1. f bar में जो मेरा पूरा ये है वो, so 2t plus 1 क्यूब इंटू dt और 2 आगे ले लिया मैंने, प्लस इंटीग्रेशन करके 0 to 1. सेकंड मेरे पास है 3 इंटू 3t plus 2 इंटू dt प्लस थर्ड इंटीग्रेशन होगा 4t plus 3, है ना? सो 4 इंटू 0 to 1 4t plus 3 इंटू dt. अब इसको इंटीग्रेट करो जल्दी, क्या होगा देखते हैं. चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2t plus 1 raised to 4 डिवाइड बाई 4 0 to 1, है ना? प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 3t plus 2 डिवाइड बाई 3, है ना? यस और नो? या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, है ना? क्योंकि इंडिविजुअल करना पड़ेगा ना यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3t square by 2 plus 2t, है ना? 0 to 1. एंड सिमिलरली लास्ट के लिए 4t square by 2 plus 3t and limit will be 0 to 1. नाउ फाइंड आउट दिस वैल्यू. चलो ये फाइंड करके मुझे बताओ, जल्दी करना. हाँ 69/2 देखते हैं, वेरीफाई कर लेता हूँ. नहीं, उतना नहीं आ रहा है. 140 by 42 by सॉरी 71 sir. 71. नो 71 भी नहीं आ रहा है. इसको वेरीफाई करना. 101/2 check it. Okay, and let me inform in next class. So is there any doubt, any question in today's session? ऑनलाइन में किसी को डाउट है? Sir,
यस मैं D2D स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो यस पहले कुमार, लेक्चर है, हाँ D2D। तो मेरे चीज स्किप हो गए हैं जो लेक्चर, तो वो कब हो गए? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन कॉल मी, है ना, मुझे आई आप डोंट कॉल हैव करना। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है इसलिए, ठीक है है, ना। आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे कॉल करना आप, ठीक है, ठीक है, या फिर ईमेल करो, है ना, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, ओके। और मेरा, अगर आपको ईमेल चाहिए तो ये रहा, है ना, ये दोनों ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हो। ओके, एनीबडी एल्स, एनी डाउट स्टूडेंट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो गुड डे, टेक केयर एवरीबडी। जी सर। गुड डे। तपन एंड कुमार, मुझे आप कांटेक्ट करो, है ना। ओके सर। चलो, अटेंडेंस कौन लिख रहा था हमारे में?